So with that, let's also begin the program with the auspicious lighting of the lamp. मैं हमारे अतिथियों का निवेदन करना चाहती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित से इस समारोह का शुभारंभ करें। और हमारे जो मीडिया से आए हुए दोस्त हैं, मैं ज़रा आपसे रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज टू मेक सम वे फॉर आवर डिग्निटरीज। If I may please invite Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot ji, Shri Shanti Kumar Dhariwal ji, Minister UDH Government of Rajasthan, Architect Tushar Sugani, convener of Rajasthan Architecture Festival and Chairman IIA Rajasthan Chapter, Architect C.R. Raju, President Indian Institute of Architects, Architects Abu Saeed Ahmed, President Acacia, Architect Habib Khan, President Council of Architecture, and Mr. Ramkesh Meena, Advisor to CM. आप उस थोड़े पे चल जाओ, उसको कमेंट में नहीं आ रहा। मीडिया वाले प्लीज बैठ जाइए। आप लंबे हो तो पकड़ लोगे आप। बड़े शांति से हम इस प्रोग्राम का आरंभ करना चाहेंगे। So I please request all of you to come together for the lighting of the lamp. So all our guests, all of you ladies and gentlemen, so once again I extend a warm welcome. I could say warm in order to match the climate of the Jaipur city as well for all of you. But here we are at the Rajasthan Architecture Festival, which will be a 3-day conclave that will be talking about the architecture, the design of our country. So once again, I extend a warm, warm welcome to all of you. And with that, we have a beautiful surprise for all of you. कभी ऐसे लगता है कि भाई अगर टैलेंट ढूंढना हो तो हमें कहीं और जाना पड़ता है, बट लेट मी टेल यू कि अगर हमारे खुद के आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, एंड दे विल बी प्रेजेंटिंग अ ब्यूटीफुल गणेश वंदना इन अ फॉर्म ऑफ अ डांस परफॉर्मेंस. सो लेट्स वाइडन दो स्माइल्स एंड लेट्स वेलकम दीज ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर एज दे कम टुगेदर to present the Ganesh Vandana dance performance. गणपति हमारे जीवन के हर कार्य, हर प्रयास के प्रारंभ में उनकी मंगल मूर्ति का हम स्मरण करते हैं. गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणश्राय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Well, ladies and gentlemen, मैं शायद बोलती let's have a round of applause, लेकिन ये हमारे खुद आर्किटेक्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं. That means it deserves a special round of applause for the hard work that they put and to be on a stage like this to perform for all of you. So I think that really calls for widened smiles and a lot of happiness there. Well, इसी के साथ let's also move forward and considering that we are here in a city, in a state that boasts of beautiful design, or for that matter, architecture itself, across the civilizations,
and also inspiring so many of us to do more and be more. So what we'd like to do is share with you a wonderful audiovisual of the Rajasthan Heritage video. Let's take a look. केसरिया बाल में पीहू प्यारी राबा सियावानी सा पधारो
capturing the spirit of Rajasthan, ladies and gentlemen. और जैसे मैंने देखा भी है कि वहाँ पे राजपूताना अवतार जो है उसको बहुत ही बखूबी से दर्शाया गया है, तो हमारे जो आर्किटेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी वीरता को सलाम, because it's thanks to you architects who are building the civilization for us, who are giving an identity to every city or for that matter every state. और जैसे हम सब जानते हैं, जयपुर, पिंक सिटी, गुलाबी तेरी सुबह, गुलाबी तेरी शाम, हर पहर गुलाबी, गुलाबी शहर नाम. Jaipur it is, wherein we are hosting this beautiful Rajasthan Architecture Festival. And ladies and gentlemen, as we all know, that the walled city of Jaipur is also part of the UNESCO World Heritage Site. Can we have a huge round of applause? Ek zordar taaliyan ho jaye, as we take pride where we belong, where we are present right now this evening. और इसी के साथ मैं अभी आमंत्रित करना चाहती हूँ on the stage. I'd like to invite our honorable dignitaries to please come on the stage to take their seats. Ladies and gentlemen, zordar taaliyon se please help me welcome on stage Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot ji, Shri Shanti Kumar Dhariwal ji, Minister UDH, Government of Rajasthan, Architect C.R. Raju, President, Indian Institute of Architects, Architect Abu Saeed Ahmed, President, Acacia, Architect Habib Khan, President, Council of Architecture, Architect Tushar Sogani, convener of Rajasthan Architecture Festival and Chairman IIA Rajasthan Chapter. And now to welcome our dignitaries, if I may please request Architect Tushar Sogani to kindly felicitate Honorable Chief Minister Shri Ashok Gehlot ji. I request Architect Tushar Sogani to please welcome our Honorable Chief Minister Shri Ashok Gehlot ji by presenting the shawl and the memento. May I now please invite Architect Mukul Goyal to please come on the stage, sir, to please felicitate and welcome Shri Shanti Kumar Dhariwal ji, Minister UDH, Government of Rajasthan. Prakash Mohanani to please come on the stage to also felicitate Architect Abu Saeed Ahmed, President Acacia. May I further invite Ashutosh Bhargav to please come on the stage, sir, to also felicitate the President IIA, Architect C.R. Raju. And may I please invite Architect Gyanendra Shekhawat to please come on the stage to please felicitate the President COA, Architect Habib Khan. Joining our dignitaries on the stage, may I please also invite Mr. Ramkesh Meena, advisor to the Honorable Chief Minister. If I may please invite Mr. Ramkesh Meena to please come on the stage, sir. And can we also welcome him with a warm round of applause, ladies and gentlemen. On that note, I'd like to now request Architect Tushar Sogani to please come forward and share his words with all of you.
to present the welcome note for the evening. A very good evening to all of you. Honorable CM Ashok Gehlot ji, Honorable UDH Minister Shanti Dhariwal ji, Abu Saeed Saab, President Acacia, CR Raju Saab, IIA President, Habib Khan Saab, President COA, and Ramkesh ji Meena, Advisor to CM. What a pleasant day for us today. जब 104 साल पुरानी ये हमारी संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का गठन हुआ था और आज इस इंस्टीट्यूट के 24 चैप्टर हैं पूरे इंडिया में और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम राजस्थान चैप्टर के मेंबर हैं और जिस चैप्टर को इस बार बेस्ट चैप्टर से भी नवाजा गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, जो इस इवेंट का उद्देश्य था राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल, दुनिया को बताने के लिए ये फेस्टिवल का इसको क्यूरेट किया गया कि वी वांट टू रियली टेल द वर्ल्ड दैट व्हाट इज आवर स्ट्रॉन्ग लीगेसी बिहाइंड अस एंड वी शुड लर्न फ्रॉम वर्नाकुलर विजडम। महोदय, 1726 में जयपुर सिटी का प्लानिंग हुआ था एंड आफ्टर दैट आज सारे जो विश्व के अलग अलग कंट्रीज से आर्किटेक्ट आए हुए हैं उन सबको जयपुर की आर्किटेक्चर प्लानिंग के बारे में पता है और आज भी वो जो प्लानिंग इतनी स्ट्रांग, इतनी सस्टेनेबल है कि नए परिप्रेक्ष्य में हम आर्किटेक्ट्स जयपुर शहर जैसे सिटी को बसाने में असफल रहे हैं। ये है हमारे शहर की धरोहर, लिगेसी। दिस इज व्हाट वी वांट टू शो द वर्ल्ड दैट हाउ रिच आर्किटेक्चरली आवर स्टेट इज। मेवाड़, मारवाड़, धुंधार, हाड़ौती एंड शेखावटी, ये 5 बहुत सशक्त आर्किटेक्चरल टूल्स हैं हमारे पास में जो हम पूरे विश्व को दिखा सकते हैं कि व्हाट आवर आर्किटेक्चर कैन डू। महोदय, इस फेस्टिवल का उद्देश्य यह है कि हम अपनी पुरानी परंपरा को वापस से जीवित करें। हम चाहते हैं कि ये फेस्टिवल सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रहे, ये फेस्टिवल जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसी सिटी में जाए। वहाँ की आर्किटेक्चरल धरोहर को हम विश्व से, जो हमारे मित्र सिंगापुर से, कोरिया से, फिलीपींस से, बांग्लादेश से आए हैं, उनको हम धरोहर दिखाएं। और आपको बताना चाहूँगा, हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं मंत्री महोदय से, आपसे, कि आपने हमें इतना सशक्त बनाया। ओनली स्टेट इन द कंट्री विद द आर्किटेक्ट्स हैव गिवन द पावर टू अप्रूव मैप्स। वी आर 75 पीपल एंड दिस इज द विजनरी ऑफ आवर ऑनरेबल CM एंड ऑनरेबल UDH मिनिस्टर, कि किस तरह से उन्होंने हम प्रोफेशनल्स को पावरफुल बनाया है। सर, आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस शहर के, इस प्रदेश के विकास में हमें आप जिस तरह भी उपयोग करना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिला के हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पे विराम दूंगा एंड थैंक्स ऑल माय डिग्निटरीज हु हैव मेड देयर आउट ऑफ देयर बिजी शेड्यूल एंड कम टू दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ जयपुर। सो होप विल हैव 2-3 days वंडरफुल डेज। सर, हमने अपनी जो थीम है उसका नाम दिया है मेटामॉर्फोसिस इन आर्किटेक्चर फ्रॉम हेरिटेज टू मॉडर्न। हमने कुछ टॉपिक्स पे चर्चा की, जैसे हेरिटेज अंडर थ्रेट, आर्किटेक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्किटेक्चर ऑफ डेमोक्रेसी, कोलैसिंग मॉडर्न मटेरियल इन ट्रेडिशनल टेरीन, सिटी प्रोटेस्ट एंड सोशल चेंजेस। एंड विल हैव brainstorming 2 days. And thank you once again, Honorable CM and Honorable UDH Minister, for blessing us and gracing this function. Thank you so very much. Thank you very much for that passionate words that you have shared with us, Architect Tushar Sogani. Thank you very much, sir. Well, इसी के साथ let's also move forward and may I please invite Architect CR Raju, President, Indian Institute of Architects, to also please share his words with the August gathering. Honorable Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot ji, Honorable Minister for Urban Development and Housing, Shri Shanti Kumar Dhariwal ji, Architect Abu Saeed, President of Acacia, Architect Habib Khan, President Council of Architecture, members of Rajasthan Chapter, invited delegates, faculty members, students, and all guests.
Good evening, and it's a very pleasant evening. We have just seen the rich heritage of Rajasthan. I think it is a blend of so many centuries of work of the royalty and many artisans and traditional workmen of this region. Rajasthan Chapter is one of the most active chapters of the Indian Institute of Architects, which has 24 chapters and 54 centers with 25,000 and odd members across the country. The heritage of Rajasthan is a legacy which we all cherish. But what we see today is a continuation of that, appreciation of that legacy. And we can see how Rajasthan Chapter is trying to promote that legacy. And also, the interaction between the government agencies and the chapter have been noteworthy in the past few years. And this is a very welcome move because unless we have a very regular interaction with the policymakers and the authorities, architects are an integral part of any development process. And I think we must thank the Rajasthan government and the various planning authorities for involving the architects of Rajasthan in various initiatives and development activities throughout the state. So I wish this Rajasthan Architecture Festival, the next 2 days are going to be very, very interactive with illustrious speakers from across various parts of the country and parts of the world who are going to be engaged in discussing how to carry on this legacy and how to, in this modern era, how to integrate the heritage and the built environment for us to leave a rich legacy for the future. Thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you very much, sir. May I now please invite architect Abu Saeed Ahmed, President Arcasia, to also please share his words with the August gathering. Ladies and gentlemen, can we also have a round of applause for architect Abu Saeed Ahmed? Honorable Chief Minister, Sri Ashok Gehlot, UDH Minister Sri Shanti Kumar Dhariwal, respected architects Habib Khan, Sir Raju, Tushar Sugani, dear fellow architects, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. After suffering through the devastating pandemic for last 2 years, IIA Rajasthan Chapter has undertaken a big challenge to organize such a mega offline physical events. Even they today morning have organized the first Arcasia physical OB meeting, office bearer meeting. So their courage is really appreciable. Not only their courage is important is their dedication. Important is their determination, hard work, their anesthesia, their organizing capacity, and also gain trust from the sponsor, which is also very, very important for organizing such event. When the organizer has all these qualities, then there is no question arise or no confusion that they will make this event successful. Recently, their involvement and commitment to the profession, Indian Institute of Architects, declared as outstanding chapter all over the India. So, a big congratulations to Rajasthan Chapter and also who are working behind the scene actually, all the members of Rajasthan Jaipur Center or chapters, and also the participant and the speakers coming
from home and abroad, whose presence make this event very vibrant. Whenever I received any invitation from any part of India, I cannot refrain myself to participate, as because of my personal as well as professional fascination on cultural heritage of India. To me, India is the cultural epicenter. I use the term epicenter of Asia, cultural epicenter of Asia. Because it is the birthplace of several architectural movements. It is an exhibition space, whole India, of several architectural movements such as Hindu, Buddhist, Islamic, Jain, British, Dutch, even Portuguese architecture. Not only that, India has rich assemblage of traditional or vernacular architecture using all sorts of construction material that we have in our planet. For example, mud, bamboo, brick, you have stone, you have limestone, you have marble, you have granite, all sorts of material you have. This is the only country where we can see vernacular traditional architecture based on all kind of material that we have in the planet. And especially the heritage architecture of Jaipur attracts me for several reasons. Foremost one is their secular in nature in terms of architecture, or amalgamation of Hindus, Islamic, and Jain attributes or elements. Even the material used in the heritage architecture of Jaipur reveals the austerity of the kings, austerity of the rulers. No extravagant use of marble or granite. They used only sandstone. Very humble in nature in architecture. Lastly, the adaptive reuse of most of the Jaipur Havelis or Rajasthani Havelis done by the new generation of architects are also worth mentioning. And also, these examples of adaptive reuse create examples for others, not only for India, for other countries of Asia. In next 2 days, all these issues will be discussed and addressed. So, at the end, I wish again a successful Rajasthani Architecture Festival with such a mega or mammoth congregation of Indian as well as Asian architects. Thank you all. Thank you very much, sir. On that note, ladies and gentlemen, may I now please invite architect Habib Khan, President, Council of Architecture, to please share his words with all of us. नमस्कार। मंच पे और मंच के समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, वास्तुकला समुदाय के समस्त सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, छात्र एवं छात्राएं, देवियों सज्जनों, आप सभी को वास्तुकला परिषद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं अभिवादन करता हूं। राजस्थान भारतीय वास्तुकला का प्रेरणा स्रोत और संस्कृति की जन्मभूमि रहा है और मैं आशा करता हूं कि राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल इसको समक्ष रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समक्ष भाव से प्रस्तुत करेगा। मैं आरएएफ के समस्त प्रायोजकों और व्यवस्थापकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस जयपुर में वास्तुकला समुदाय में विचारों के आदान प्रदान का अवसर दिया और आशा करता हूं कि आने वाले 2 दिवस के त्यौहारिक सम्मेलन में रुचिमय एवं आंतरिक विवाद होगा।
वास्तुकला परिषद के अध्यक्ष हेतु मैं आपको और अपने समुदाय को वास्तुकला परिषद की ओर से पूर्णतः सहयोग का आश्वासन देता हूं। I request the organizers, Tushar and your team, to kindly share the proceedings of the two-day conference and the festival with the Council of Architecture so that we can take it to all the institutions across the country and also take it to all the architects so that the knowledge and the discussions that happen in this forum will be shared across the country. Dhanyavad, Jai Hind. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, अब मेरी गुजारिश है कि मैं आमंत्रित करूं श्री शांति कुमार धारीवाल जी, जो कि मिनिस्टर यूडीएच गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, एंड मैं इनवाइट करना चाहूंगी ताकि वे भी अपने विचार आप सबके साथ शेयर करें. लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव द लाउडेस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज? प्लीज हेल्प मी वेलकम श्री शांति कुमार धारीवाल जी. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के राजस्थान चैप्टर के संयुक्त प्रयासों से ये आयोजन देश की पिंक सिटी जयपुर में जो आयोजित किया जा रहा है, जयपुर के बारे में जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया आपको कि हमारी सरकार के अथक प्रयत्नों के बाद यूनेस्को ने इसको विश्व स्तरीय धरोहर के रूप में चयनित किया. और राजस्थान के प्रत्येक शहर में की विरासत की दृष्टि से देखें तो आपको हर शहर अद्वितीय मिलेगा, जिसका आपने यहाँ पर वो भी बताया है, चारों तरफ ही बताया आपने, कोशिश की है उसकी बहुत अच्छी. नियोजन और भवन निर्माण कला का परंपरागत रूप से विकास और विरासत का संरक्षण का प्रयास हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है. राजस्थान का इतिहास वास्तुकला के में बहुत ही स्वर्णिम रहा है. यहाँ पर हेरिटेज और हाईटेक दोनों साथ साथ चले हैं. विकास में सबसे अग्रणी है अगर भूमिका मानी जाती है तो आर्किटेक्ट्स की मानी जाती है. और आप लोगों का काम हम ये समझते हैं कि सिर्फ डिज़ाइन करना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक विज़न देना है, जिस विज़न से जो है किसी भी शहर को किस प्रकार से उन्नति दी जा सकती है, किस प्रकार से उसका विकास किया जा सकता है. मोटे तौर पर वो बात है. आर्किटेक्ट सिर्फ एक नक्शा बना दे उससे काम नहीं चलता, लेकिन उसका विज़न होना चाहिए. उसका विज़न ये हो कि वो शहर को हम किस प्रकार से खूबसूरत बनावें. कोई भी जिस चीज़ को हम बना रहे हैं वो किस प्रकार की खूबसूरती लेगी, क्योंकि मोटे तौर पर हर शहर यूनिक होता है. जयपुर के लिए जो चीज़ सही है ज़रूरी नहीं कि वो दिल्ली के लिए भी सही हो. अभी मुख्यमंत्री जी ने हमें मंजूरी दी 125 मीटर ऊंचाई पर देश का पहला आईपीडी टावर हॉस्पिटल यहां पर बनने जा रहा है. निर्माण चालू हो चुका उसका, 125 मीटर ऊंचा. तो मैं ये समझता हूं कि इतनी ऊंचाई पर अस्पताल जाने पर का मतलब ये हुआ कि जयपुर में स्काई क्रेपर का अब समय आ गया. अब आने वाले वक्त में न जाने कितनी 100 मंजिलों की बिल्डिंग बनेंगी. सरकार ने भवन निर्माण स्वीकृति जो बिल्डिंग बायलॉज का सिंप्लीफिकेशन किया है, उस सिंप्लीफिकेशन में सबसे बड़ा काम तो हमने ये किया जिससे हमारी मुसीबत भी कम हो गई. मुसीबत आपकी बढ़ी है, हमारी बढ़ी नहीं है, लेकिन अधिकार आपको मिला है. अधिकार आपको मिला है कि आप नक्शे को अनुमोदित आप करेंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप देंगे, जो आप देंगे उसको हम मंजूर करेंगे. ये देश में और कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको जो हमने किया. मुख्यमंत्री जी की इच्छा से ये काम हुआ. राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने
न केवल 223 देशों 223 शहरों का जिसका मास्टर प्लान बन गया, जोनल प्लान बन गया, सेक्टर प्लान बन गया, लेकिन ग्रामीण इलाके का भी मास्टर प्लान बनाने का आदेश दिया। और आज जगह जगह के ग्रामीण इलाकों के बड़े बड़े गांवों के जो है वो मास्टर प्लान तैयार हो रहे हैं। राजस्थान में हमने जो मॉडल बाइलाज बनाए, बिल्डिंग बाइलाज बनाए 2020, उसको सारे पूरे राजस्थान के हर शहर में लागू किया है। हर शहर उनको मॉडल बाइलाज के अनुसार काम करेगा। लेकिन आज अब समय आ गया इस बात का कि आज ये तय हो जाना चाहिए कि अगले 25-50 वर्षों में हमारा शहर कैसा दिखेगा, कैसे जरूरतें कैसे पूरी होंगी, कौन सा बिजनेस कहाँ बढ़ेगा, कितने रोजगार मिलेंगे, दिनचर्या किस प्रकार से सुगम होगी और कौन सी गतिविधियां कहाँ होगी, कैसे होंगी, ये सब चीजें तय करने का नक्शा आ गया ना। अब समय आ गया। मास्टर प्लान एक नक्शा ही नहीं बल्कि ये तय करेगा कि शहर की स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन कैसे संचालित हों। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो सोच दी और उसी के अनुसार जो है डेडिकेटेड कंसल्टेंट हमने सब जगह नियुक्त किए और नियुक्त करके उनका सारा प्लान जो है उसको अपडेट किया, सबका सब। जो विशिष्ट शहर हैं जैसे माउंट आबू है, जैसलमेर है, जयपुर की 4 दीवारी है, उदयपुर की लेक डेवलपमेंट है, तो इनके लिए स्पेशल बाइलाज बनाए गए, बिल्कुल अलग बाइलाज इस तरीके के बनाए गए कि जिससे कि उनकी विरासत, उनका जो पुरातत्व का जो ढांचा है वो वैसा मजबूत रहे। आर्किटेक्ट को जिस प्रकार की वैधानिक शक्तियाँ राजस्थान ने दी है, मैं ये समझता हूँ कि उसमें और वृद्धि होगी, कोई कमी नहीं रहेगी। भवन विनियमों के अतिरिक्त राजस्थान की टाउनशिप पॉलिसी में जो प्रावधान पहले नहीं थे, 2010 में टाउनशिप पॉलिसी बनी, लेकिन उसमें जो प्रावधान थे उन प्रावधानों के अलावा भी अब कुछ और काफ़ी कुछ जोड़ दिया गया है। लैंड यूज सिर्फ कॉमर्शियल रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रियल परिभाषाओं तक ही सीमित न रहे, बल्कि वह यह भी चिन्हित करे कि कहाँ पर किस प्रकार की स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होंगी, कहाँ पर रिटेल, कहाँ पर स्मॉल कॉमर्शियल, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ऑफिसेज वगैरह वगैरह कहाँ पर होंगे और शहर किस प्रकार से जो है वो विकसित हो पाएगा। ये भी ज़रूरी है कि टाउन प्लानर्स लोकल मटेरियल, आज हमने प्रदर्शनी देखी, प्रदर्शनी में कई चीज़ें आपको ऐसी देखेंगी आपको जहाँ पर लोकल मटेरियल काफ़ी कुछ मौजूद है। बेहतर यही होगा कि हमें अपना लोकल मटेरियल काम में लेना चाहिए जिससे कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो कम आए। उस और लोकल मटेरियल को लगाएंगे आप तो उसका एक तरह से एग्जिबिट करेंगे आप, तो निश्चित तौर पर उसको जो है उसका प्रचार प्रसार इतना होगा कि पूरा देश में भी जा करके या विदेशों में भी जा करके वो चीज़ जा सकेगी। तो मैं तो इस अद्भुत आयोजन के लिए और ख़ास तौर पर हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने वक्त यहाँ पर निकाला, उनको खुद को आर्किटेक्ट्स को सुनने का, आर्किटेक्ट्स की बात को समझने का जो शौक मैंने मुख्यमंत्री जी में देखा है, बहुत कम लोगों में, बहुत कम लीडर्स में मिलेगा, बहुत कम लीडर्स में मिलेगा। क्योंकि ये मोटे तौर पर ये काम ऑफिशियल्स के जिम्मे होता है, लेकिन कोई राजनेता इस मामले में शौक ले कि कहाँ पर क्या चीज़ बननी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, कौन बनाएगा, किस वक्त तक बन जाएगी, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का भी वक्त निकालना मुख्यमंत्री जी की आज यहाँ पर मौजूद सोगानी साहब और इनके जितने भी साथियों ने ये आयोजन किया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तथा हमारे मेहमान हबीब खान साहब
अब्बू सईद साहब और राजू साहब और हमारे लोकप्रिय विधायक रामकेश जी मीना यहाँ पर मौजूद है। सब लोग आज यहाँ पर आप लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद हैं और हम ये चाहते हैं कि आज इस प्रकार की चर्चाएं हों, इस प्रकार चर्चा है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो और किस प्रकार से जो है इन चीज़ों को जो देश के विकास के लिए सिटी को डेवलप करने के लिए सिटी में कोई हेरिटेज का कंजर्वेशन हो, रेस्टोरेशन हो, उन चीज़ों को किस प्रकार से जो है और गति दी जा सकती है, इस बात निश्चित चर्चा हो। तो मैं इसी बात को लेकर के अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्री धारीवाल जी, बेहद खूबसूरती से और एकदम दिल से आपने जो आपके विचार हमारे साथ शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, हमारे बीच हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का यहाँ पर मौजूद होना और इस समारोह का उद्घाटन करना, इससे यही साबित होता है कि पधारो हमारे देश ये सिर्फ एक वाक्य नहीं पर एक एहसास है। तो इसी एहसास को आगे बढ़ाते हुए जोरदार तालियों से प्लीज हेल्प मी वेलकम none other than Shri Ashok Gehlot ji to please share his words with the august gathering. हमारे लोकप्रिय मंत्री शांति धारीवाल जी, हमारे एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर रामकेश मीना जी, तुषार सोगानी जी, चेयरमैन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट राजस्थान, शिया राजू जी, मिस्टर अबू सईद अहमद जी, मुकुल गोयल जी, प्रकाश मोनानी जी, गौरव अग्रवाल जी, आशुतोष जी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के तमाम विभिन्न चैप्टर्स के यहाँ आए हुए अतिथिगण। मुझे बताया गया कि 22 देशों के आर्किटेक्ट साथी आए हैं। तमाम अतिथिगण, मैं सबसे पहले अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से इस शानदार आयोजन का जो आपने यहाँ आयोजन किया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि राजस्थान में आर्किटेक्ट फेस्टिवल रखा गया 2 दिवसीय, और वास्तव में आपने सही जगह चुनाव किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। राजस्थान वास्तव में, अभी मेरे पूर्व वक्ता ने आपको बताया, आप में से अधिकार लोगों को जानकारी होगी, आजकल तो आईटी का ज़माना है कि दुनिया के अंदर किस देश में, किस राज्य में किस प्रकार का आर्किटेक्ट है, आधुनिक और पुराना भी। राजस्थान के बारे में आपको मालूम है कि हर शहर के अंदर पुराने ज़माने से ही पता नहीं उस ज़माने में कैसे आर्किटेक्ट हुआ करते थे, इस समझ के परे हैं। एक से बढ़ के एक आपको यहाँ पर, अभी मेरे धारीवाल जी भी कह रहे थे, सोहानी जी कह रहे थे, चाहे मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, ढूंढाड़ हो, जयपुर के अंदर देखिए आप आमेर का किला, जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट की बात में अभी तो गली से कह रहा था कि इतनी हाइट पे कैसे बना होगा वो किला, आज भी आश्चर्यजनक बात थी। उम्मीद भवन जो ड्राउट पड़ता है, काल सूखा पड़ता है राजस्थान के अंदर, तो ड्राउट के अंदर जो मजदूर थे उस जमाने के, उनके द्वारा काम शुरू किया गया। शानदार उम्मीद पहले राज वहाँ स्थित है, आप सबकी जानकारी में होगा। जैसलमेर जैसी जगहों में पटों की हवेली हैं और सुंदर किला वहाँ पर दुनिया देखने आती है। तो पूरे राजस्थान के हर जगह कोई न कोई आपको आर्किटेक्ट के संबंधित आपको कलाएं मिलेगी, काम मिलेंगे। आपकी श्रद्धा अगर 5 साल पुरानी बताई गई, 5 साल का इतिहास ही बहुत बड़ा इतिहास होता है। इतना लंबा सफ़र तय करते करते आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप
कॉन्फ्रेंस और सेमिनार और फेस्टिवल करते हैं, और दुनिया भर में जो मुल्क हैं उनसे आपका नाता बन गया आपस के अंदर, सब मिलके आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और आप लोग फेस्टिवल के माध्यम से जुड़ते रहते हैं। आज़ादी के बाद में पंडित नेहरू जैसे नेता एक दूरदृष्टि थे, वो खुद ही शिल्पी थे और उसी रूप में उन्होंने दूरदृष्टि से काम लिया और बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े बांध के साथ में IIT, IIM का निर्माण भी कर दिया। MIT भी बन गई बाद में लगातार, और तमाम स्थिति ऐसी बनी कि आज देश के अंदर जो आर्किटेक्ट आप बैठे हुए हैं, कई जगह कॉलेजेस खुल गई हैं, अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। देश में हमेशा पंडित नेहरू के बाद में भी इंदिरा जी आई तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट बना आर्किटेक्ट का 1972 के अंदर बना, और आगे बढ़ने का चांस मिला। राजीव गांधी के ज़माने में जिस प्रकार से चार्ल्स कोरिया थे, जिनको मैं जानता था जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था केंद्र सरकार में, तब क्राफ्ट इंस्टीट्यूट बनी हुई दिल्ली के अंदर। उस ज़माने के अंदर चार्ल्स कोरिया से मेरा मिलना होता था लगातार। ये जयपुर का जो जवाहर कला केंद्र है वो भी उनका डिज़ाइन किया हुआ है, और राजीव गांधी ने उनको जो काम सौंपा था नगरीय विकास के लिए आयोग बना करके, उसके बाद में मास्टर प्लान देश में बनने लगे। मास्टर प्लान आज भी बन रहे हैं, पर मेरा मानना है और ज़्यादा इसमें हर सरकारों को, किसी पार्टी की सरकार हो, पर योजनाबद्ध तरीके से विकास होना आवश्यक है आने वाली पीढ़ियों के लिए। उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभी धारीवाली कह रहे थे, अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान चला तो आर्किटेक्ट बिरादरी का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है राजस्थान के अंदर, कि लोग उसमें भागीदार निभाए। मास्टर प्लान बनाए आप लोगों ने, बाईलॉ जो बने हैं, कहते हैं कि देश के अंदर सबसे अच्छे बाईलॉ राजस्थान बने हैं, वो यहाँ के आर्किटेक्ट ने बनाए। इस प्रकार से आपने कोई कमी नहीं रखी, सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। उसी रूप में मैं समझता हूँ कि गाँव का मास्टर प्लान, ये मेरी 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तब मेरा सपना था, जो अभी तक अधूरा है। उस वक्त मैंने कहा था कि गाँव तक के मास्टर प्लान बड़े रूप में बनने चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों तक में कहाँ स्कूल बने, कहाँ खेल का मैदान हो, कहाँ अगर गांव बड़ा बन गया तो कॉलेज बनेगी वहाँ पे, तो कहाँ बनेगी, पार्क कहाँ बनेगा, ये कम से कम प्लानिंग हो जानी चाहिए गाँव की। वरना ऐसी स्थिति बनती है गाँव के अंदर भी कि आप अगर इमरजेंसी में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती है। प्रयास किए गए, 100 गाँव को सेलेक्ट भी किया गया, पर वो काम आगे नहीं बढ़ पाया। अभी भी हमारा प्रयास है कि गांव तक में बड़े रूप में इस प्रकार मास्टर प्लान बन जाए, जिससे कि रिकॉर्ड में रहे, उसके आधार पर गांव का विकास हो। इस प्रकार की सोच के साथ में हम लोग काम करना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के अंदर एक से बढ़ के एक आर्किटेक्ट हुए हैं, और आपकी जो सोच है, आपका विजन है, वो काम आता है, वो काम आता है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटी में कोर्सेज खुले, अच्छी फैकल्टीज बने, ये हमेशा सरकार की भी कोशिश रहेगी। क्योंकि मुझे खुद के अनुभव है कि मेरी खुद की डॉटर जो है वो आर्किटेक्ट है, और राजस्थान में एक घटना ने सोच बदल दी मेरी खुद की। जब मैं एडमिशन की बात थी, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, केंद्रीय मंत्री था,
और जब एडमिशन की बात आई मेरे खुद के अपने सन की और डॉटर की, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपको एडमिशन नहीं मिल सकता राजस्थान के अंदर, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, डोमिसाइल नहीं है। मैंने कहा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बेटे मनु मर्दुल, कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी जोधपुर, पैदा जोधपुर में हुआ मैं, मेंबर पार्लियामेंट बन गया, केंद्रीय मंत्री बन गया, मैं इसलिए वहाँ रहता हूँ, तो डोमिसाइल कैसे नहीं होगा। उनको भेजना पड़ा पूना आर्किटेक्ट कॉलेज के अंदर, और संयोग से मैं 2 साल के अंदर खुद मुख्यमंत्री बन गए यहाँ पर। तो पहला काम मैंने ये किया अपने अनुभव से, भाई चलो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करो यहाँ पर। उसके बाद में अब ये इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और जो भी कॉलेज खुलती प्राइवेट, वो पहले अलाउ नहीं थी राजस्थान के अंदर। हमें राजस्थान के जो छात्र जाते थे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में जाते थे। तो इसलिए अभी मेरे पास फ़ोन नहीं आया था, हम के जी जवाब दे ही रहे थे, हमारे एडवाइजर है ये। मेरी डॉटर का फ़ोन आया बॉम्बे से कि नहीं आपको उस प्रोग्राम में जाना है, इस प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे लगता है कि आर्किटेक्ट की बिरादरी बहुत मजबूत दिखती है। तो मुझे अच्छा लगा कि आपके बीच में मुझे आने का एक अवसर मिल गया, आप लोगों से सबसे मुलाकात भी हो गई, और आने वाले वक्त के अंदर क्या सरकार कर सकती है और क्या आप कर सकते हैं सरकार के लिए, ये हमारा रिश्ता बना रहे, मजबूत हो और मजबूत होगा। मैंने कहा सुगानी जी को कि राजस्थान के जो आर्किटेक्ट हैं उनके साथ में जब कभी आप चाहेंगे तो मैं मीटिंग करूंगा, और क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या होना चाहिए, राजस्थान के फ्यूचर को देखते हुए मैं समझता हूँ उसमें सरकार हमेशा आगे खड़ी मिलेगी आपको। और पूरे देश के भी लोग आए हैं यहाँ पर और विदेश से भी आए हैं। मैं तमाम अतिथियों का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी सोच है वो हमारे लिए भी काम आएगी, क्योंकि हमने कई योजनाएं राजस्थान में प्रारंभ की है और उचित ढंग से, क्योंकि तो आपका क्षेत्र इतना बड़ा है और जो संयोग से देश के अंदर और राजस्थान के अंदर जो पुराने ज़माने के आर्किटेक्ट के हिसाब से काम किए हुए हैं वो अद्भुत है। ये समझ के परे मेरे तो है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको जोधपुर के किले का, मेहरानगढ़ फोर्ट है, इतनी ऊंचाई में बना हुआ कि कैसे बना होगा, कितना वक्त लगा होगा, कैसे पत्थर बड़े बड़े पहुंचे होंगे, समझ के परे हैं। उस वक्त के आर्किटेक्ट कैसे थे भगवान जाने। आप तो हमारे सामने बैठे हुए हैं। लुटियन जॉन है, लुटियन दिल्ली कहलाती है, राष्ट्रपति भवन से लगा के पार्लियामेंट भवन से लगा के सब कुछ है। तो देश के अंदर आपकी बिरादरी की नहीं, आपके उन लोगों ने जो उस वक्त के आर्किटेक्ट थे, चाहे वो आपकी तरह कोर्स नहीं किए हुए थे, आईटी का ज़माना नहीं था, आजकल तो कंप्यूटर भी है जिसको भी आप उपयोग करते हैं। उसमें तो कुछ नहीं था, तब भी सब कुछ हुआ। तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि उस ज़माने की सोच चली आ रही है, और अब तो देश और दुनिया में क्या हो रहा है सब आपस जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी आर्किटेक्ट के बिरादरी के लोगों की कमी नहीं रहेगी, सरकार पूरा साथ देगी। यही बात कहता हूँ मैं अपनी आप बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गहलोत जी, थैंक यू वेरी मच। आपने आपकी मौजूदगी से और आपके विचारों से हमें प्रेरित किया है, थैंक यू वेरी मच। मैं जानती हूँ यहाँ पे जो आए हुए डेलीगेट्स हैं विभिन्न प्रदेशों से और विभिन्न देशों से आए हुए हैं। आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट्स across India and across the globe, but can we have a huge round of applause one more time for our very own dynamic Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot ji. Thank you very much, sir. और इसी के साथ may I now please invite Architect Gaurav Agrawal, co-convener Rajasthan Architecture Festival, to please come on stage to propose the vote of thanks. नमस्ते।
इस सभागार में बैठे सभी महानुभावों को मेरा दिल से आभार। सबसे पहले धन्यवाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब श्री अशोक जी गहलोत का और हमारे माननीय यूडीएच मंत्री जी श्री शांति धारीवाल जी का, जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकारा और आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आई एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू आर्किटेक्ट अबू सईद, प्रेसिडेंट आरकेसिया, आर्किटेक्ट हबीब खान, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, and architect C.R. Raju, President, Indian Institute of Architects. And to all the eminent speakers and all the national and international delegates, and none other than our own Rajasthan Chapter delegates. Thank you so much. Rajasthan Architecture Festival is truly a festival, one of its kind, which is planned to have an interaction and dialogue exchange among the fraternity, industry, and students. I believe that it will be beneficial for all of us, and we all will carry good memories, wisdom, and knowledge back home. From the bottom of my heart, I extend my gratitude to all the sponsors who have generously helped us in making this event possible, and all the exhibitors of Showcase who have put a great show in the event. Last but not the least, I thank to the entire organizing committee, Team FOED, and all the students who have put all their efforts day and night. Thank you all so much. Now I request everyone to join for high tea. Dhanyavad. Ladies and gentlemen, if we could please have your attention. We are almost coming to the end of the program, but we'd like to request you to please rise up to honor the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. With that, ladies and gentlemen, as we conclude the evening, we cordially invite you to also join us for the rest of the evening and, of course, the gala evening that's planned for all of you. Thank you so much again.